دوسروں کو چور کہنے والا خود 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں ملوث نکلا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 4 سال ملک دشمنی کی انتہا کر دی۔ اس شخص کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ ہم نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ریاست بچائی۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث شرپسندوں کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شاہین چوک فلائی اوور کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیل کو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آ رہی ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ اسرائیل کو خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ پاکستانی عوام سیسا پلائی دیوار بن کر بیرونی سازشوں کا مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف شاہین چوک فلائی اوور کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے اسرائیل نے، اور اس کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہے یہاں پر وائلیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کو کوئی حق نہیں ہے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا۔ کسی بھی ملک کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف شاہین چوک فلائی اوور پر سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسروں کو چور چور کہتا رہا اور خود 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں ملوث نکلا۔ اس شخص نے 4 سال صرف چور چور ہی کیا ہے۔ آئی ایم ایف سے قرضے کا حصول لمحہ فخریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے رہیں گے۔ تعلیم کے فروغ سے ہی ترقی ممکن ہے۔ طالب علموں کو حصول تعلیم کے لیے وسائل کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ اور قومی نصاب میں اصلاحات کی تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا۔ دوران سماعت جج اور پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ عدالت نے گواہان کو بھی کل دوبارہ پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ یوب گیریجن پر دہشت گردوں کا حملہ، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن کے دوران 4 جوان شہید، 5 زخمی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی جان نچھاور کر کے ملک کو بڑے جانی نقصان سے بچایا۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ، اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی تمام مذاہب کے احترام سے متعلق قرارداد منظور۔ قرارداد کے حق میں 28 ملکوں نے ووٹ دیا۔ قرآن کریم کی بے حرمتی سمیت مذہبی منافرت کی ہر قسم کی مذمت۔ ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے نیوز شو ایٹ 7 کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ جان چکے ہیں پروگرام میں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوب گیریجن میں دہشت گردوں کے حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 4 جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے شہداء کو قوم کا فخر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی جان نچھاور کر کے ملک کو بہت بڑے جانی نقصان سے بچایا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دوسروں کو چور کہنے والا خود 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں ملوث نکلا۔ اس شخص نے 4 سال ملک دشمنی کی انتہا کر دی۔ اسلام آباد میں شاہین چوک پر فلائی اوور کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलव्वस निकला। इस्लामाबाद में शाहीन चौक पर फ्लाईओवर के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस मौके पर यह भी कहना था कि फ़लस्तीनों पर जुल्म करने वाले इसराइल को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आ रही हैं। किसी को भी ये हक़ नहीं है कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। हम एक सॉवरन स्टेट हैं और बिल्कुल जानते हैं कि हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करना है। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का किसी को कोई हक़ नहीं है। उनका कहना था कि सानहा 9 मई में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वो रियासत पर हमला था, रियासत पाकिस्तान पर हमला था, उनके एसेट्स पर हमला था, उसको किसी सूरत जो है वो दरगुजर नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज शाहीन चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में मौजूद थे। शाहीन चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद उन्होंने रखा। ख़ास तौर पर इस मौके पर अगर हम आपसे शेयर करें, इस मौके पर मौजूद थे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी, अंजुम अकील खान और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। और CDA के चेयरमैन ने इस मौके पर ब्रीफिंग दी शाहीन चौक पर फ्लाईओवर के मंसूबे के हवाले से। उनका कहना था कि तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत से यह मंसूबा तैयार होगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 150 अरब रुपए के मुख्तलिफ मंसूबे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हवाले से जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ 1.5 साल के अरसे में मुकम्मल करने का टास्क दिया था। उसमें से 100 अरब के मंसूबे जो हैं वो 31 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएंगे और वो अवाम के हवाले कर दिए जाएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तवस्सुत से। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बाराकहू फ्लाईओवर जो बाराकहू का बाईपास है वो पूरे मुल्क के लिए तोहफ़ा है, क्योंकि सयाह जो पूरे मुल्क से गलियात, मरी, खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, शुमाली इलाका जात में, वो बाराकहू पर जिस तंगी का शिकार होते हैं, अब वो बिल्कुल 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर इस तमाम के तमाम एरिया से बाहर निकल जाएंगे। और ये पूरे मुल्क के सयाहों के लिए, सयाहत के लिए, टूरिज़म के लिए ये एक तोहफ़ा है जो मौजूदा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इनिशिएटिव है। ये आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख रहे हैं, ये संगे बुनियाद रखने की तकरीब के मनाजिर हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को CDA के चेयरमैन नूरुल अमीन मेंगल की तरफ से ब्रीफिंग भी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि 2 अरब यानी तकरीबन 2 अरब 1.7 अरब रुपए की लागत से यह मंसूबा जो है वो तैयार होगा। नूरुल अमीन मेंगल का ये कहना था कि 6 महीने में यह मंसूबा मुकम्मल होगा, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह मंसूबा वो अगले 3 माह की मुद्दत में मुकम्मल चाहते हैं। और इस मंसूबे से इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक जैम होता है, 3 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जो हैं वो इस मंसूबे से फैसिलिटेट होंगे, जिनमें एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात शामिल हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और ट्रैफिक का फ़्लो इस्लामाबाद में बेहतर करने में इस मंसूबे से मदद मिलेगी। लेकिन नूरुल अमीन मेंगल का, चेयरमैन CDA का, इस मौके पर यह कहना था कि यह मंसूबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के हवाले से बहुत छोटा है। ये 2 अरब का मंसूबा है, लेकिन 150 अरब रुपए जो है उसके मंसूबे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को तोहफ़तन इस हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द तमाम मंसूबे मुकम्मल किए जाएं, जिनमें 100 अरब के मंसूबे बशमूल बाराकहू फ्लाईओवर और बाईपास का जो मंसूबा है वो 31 जुलाई तक मंसूबा जो है वो इसमें शामिल करके दे दिया जाएगा, अवाम के हवाले कर दिया जाएगा। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के शहरियों के लिए ये तमाम तर मंसूबे जो हैं वो तोहफ़ा हैं। रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज 12 जुलाई यानी बुध को अभी थोड़ी देर पहले हमें कंफर्म हुआ है कि हमारे ब्रादर मुल्क, दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात ने
1 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉज़िट जमा करवाया है और ये फेडरल रिज़र्व बैंक जो कि क्लियरिंग हाउस है उसने कंफर्म किया है कि हमारे अकाउंट में रकम भेज दी गई है और पाकिस्तान स्टेट बैंक को ये क्रेडिट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारे स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं उसमें मज़ीद 1 अरब डॉलर से बेहतरी आएगी। कल 2 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया के डिपॉज़िट हुए थे, आज ये 1 अरब डॉलर डिपॉज़िट हो रहा है और इस तरह स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं 2 दिन में 3 अरब डॉलर से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफ़ा हुआ है। ये जो रिज़र्व्स हैं पूरे वीक के, चूँकि हर हफ्ते यानी हफ्ते के आखिर में लास्ट वर्किंग डे पे इसकी नंबर्स दिए जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ये नंबर्स जो हैं ये सारे कल सऊदी अरेबिया भी और आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का भी, ये जो 14 जुलाई को पाकिस्तान के रिज़र्व्स के फिगर्स जारी किए जाएंगे वीकली हफ्तावार, वो उसमें ये सऊदी अरेबिया के भी डिपॉज़िट रिफ्लेक्ट होगा। और आज जो अभी थोड़ी देर पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की कंफर्मेशन मिली है, जो उन्होंने माजी करीब में अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान को हम भी 1 अरब डॉलर के डिपॉज़िट देकर उसकी सपोर्ट करेंगे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। मैं इस मौका के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह पाकिस्तान की इस वक्त जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मरहले से गुज़रा है पिछले चंद महीनों में, एक यानी एक अमली तौर के ऊपर एक सबूत दोस्ती का दिया और डिपॉज़िट अपनी जो अनाउंसमेंट की थी, जो कि वज़ीर आज़म रिसेंटली जब चंद हफ्ते पहले यूएई में गए एक ब्रीफ दौरे के लिए, तो उसमें भी उन्होंने ये फरमाया कि हम बड़ी जल्दी ये डिपॉज़िट पाकिस्तान को देंगे। और इसी तरह का मैसेज उन्होंने चंद रोज़ पहले आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी दिया, उनके ज़रिए, दोनों के ज़रिए मुझे भी मैसेज मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज वो मटेरियलाइज़ हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो मैंने अर्ज़ किया कि जो रिज़र्व्स की पोजीशन है फॉरेन एक्सचेंज की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। हमारा हदफ वही है जो मैंने अर्ज़ किया था कि जुलाई के एंड तक पाकिस्तान के जो रिज़र्व है एक पॉइंट के ऊपर करीबन $8 बिलियन पे चले गए थे, वो उनको हम 14 और 15 अरब डॉलर के दरमियान रिज़र्व्स को पाकिस्तान को बिल्ड कर लें। ये रफली वो फिगर है कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने यानी वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी संभाली अप्रैल 2022 में, तो वो रिज़र्व तो करीबन इतने थे, लेकिन जो आने वाली अदायगियाँ थीं वो बेशुमार थीं, अरबों डॉलर की थीं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल 22 से लेके आज तक अदा भी हुई हैं और उसमें 1 मिनट की तख़ीर भी नहीं हुई। और जो राग गलापते थे लोग कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, कर रहा है, फ़लाँ डेट हो रही है, वो सब कुदरती मौत मर चुकी है। वो अफवाहें और वो क्या सराइयाँ, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है और हमारे आने वाला हर दिन इंशाअल्लाह पिछले दिन से बेहतर होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दें कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें और इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशा रहें। पाकिस्तान इंशाअल्लाह मेरा मजबूत ईमान है कि अपना दुनिया की कॉमिटी ऑफ नेशन में अपना वो मुकाम ज़रूर हासिल करेगा जिसकी ख्वाब जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखी थी और जिसके ऊपर अमली तौर के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब के टेन्योर्स में अमल हुआ और ये पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बना 16-17 में और बदकिस्मती से ये दुनिया की 47वीं मईशत बन गया तनज़्ज़ुली की वजह से। जो 5 साल पाकिस्तान ने एक सियासी तमाशा देखा और एक इम्पोर्टेड और एक सिलेक्टेड हुकूमत को इम्पोज़ किया गया, उसके सब जो हमने नुकसानात देखे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान वो तमाम नुकसानात अब रिकवर कर रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ अपनी असल मंजिल तरक्की की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आप सबका हामी नाज़िर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की तरफ से कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाई गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब
स्टेट बैंक के और पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब जिसका उन्होंने वादा किया था कि बहुत जल्द करवा देंगे, वो $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में पहुंच चुके हैं। इसकी तस्दीक की है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने। उनका ये कहना था कि $2 अरब सऊदी अरब की तरफ से बिल्कुल अभी पिछले दिनों में मौसूल हुए हैं, और उसके साथ साथ $1 अरब अब UAE ने भेजा है, जिसके साथ $3 अरब का इजाफा हो गया है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ज़र मुबादला के ज़खायर में। और उनका ये कहना था, उन्होंने उम्मीद दिलाई कौम को, बल्कि यकीन से कहा कि इसमें मज़ीद भी बेहतरी आएगी। हम अपना टारगेट जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, ज़र मुबादला के ज़खायर का, जुलाई के आखिर तक का, वो इंशाअल्लाह हम अचीव कर लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने अपनी तरफ से और अवाम की तरफ से सऊदी अरब और UAE की हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया है। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सोच में यकसुई और इसार व कुर्बानी के जज्बे के तहत अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान अपनी तरक्की के तमाम अहदाफ हासिल कर लेगा। इस्लामाबाद में छठे पाकिस्तान फार्मर समिट और अवार्ड्स देने की तकरीब से खिताब की तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ और सनत का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। अद्वियात की कीमतों के तयन का तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए जिससे ना तो आम आदमी मुतासिर हो और ना ही सनत को नुकसान पहुँचे। उन्होंने अद्विया साज सनत के मसाइल हल करने के हवाले से खुसूसी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। गरीब आदमी का आप ख्याल रखें, उसकी दवाई का। हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह आपके तमाम जायज़ मुतालबात मानने के लिए मैं हाज़िर हूँ। इस मुल्क को बनाना है। हमारी जो नौजवान 60% ये पाकिस्तान की आबादी का, उनको हम हुनर सिखाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्स दें। सियासतदानों ने, कारोबारी हजरात ने, आपने और मुल्क के तमाम इदारों ने मिलकर इस मुल्क को बनाना है। वज़ीर आज़म ने मुश्किलात के बावजूद अद्वियात की बरामदात में इजाफे पर पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने कहा कि 22% मार्कअप रेट सनत के लिए नुकसानदेह है। मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल से पॉलिसी रेट में भी कमी आएगी। पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सदर सईद फारूक बुखारी ने वज़ीर आज़म के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि फार्मा सनत को तरजीही बरामदी सनत का दर्जा दिया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से अद्वियात बरामद करने वाली 50 बड़ी कंपनियों को अवार्ड दिया। मुआशी मुश्किलात के बावजूद फार्मा सनत की बरामदात में 25% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में अद्विया साज सनत अपनी बरामदात को $5 अरब तक ले जाने की सलाहियत रखती है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि तालीम को फ़रोग़ देने से बढ़कर मुल्क की कोई और बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। हमें अपने वसाइल इन करोड़ों बच्चों के कदमों में निछावर करना होंगे ताकि वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होकर मुल्क की तरक्की के मामार बन सके। मज़ीद तफसील जानेंगे आगा मसूद खालिद से। विफाक में 14 अरब रुपए का पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड कायम कर दिया गया है, जिसके जरिए होनहार और मुस्तहिक तलबा और तालिबात को तालीमी वज़ाइफ दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से 2008 में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी तर्ज का पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फंड कायम किया, जिससे अब तक 4.5 लाख बच्चे मुस्तफीद होकर कौम के मेमार बन चुके हैं। तालीमी इस्लाहात के जरिए अब आईने पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग को भी निसाब का हिस्सा बना दिया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। हमें अपने बच्चों को तालीमी वसाइल मुहैया करना होंगे। 2008 में पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फंड का क़याम अमल में लाया गया। उससे कुछ 4,50,000 बच्चों और बच्चियों को तालीमी वज़ाइफ दिए गए और वो अजीम कौम के मेमार बन चुके हैं। इससे बड़ी नेमत और इससे बड़ी खिदमत कौम की कोई और हो नहीं सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब घरानों के बच्चे तालीमी वसाइल से महरूम हैं। एजुकेशन एंडोवमेंट फंड के जरिए बच्चों को आला तालीम के मौके मैसर आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये न सियासत है न कोई और चीज़ है, ये इबादत है कि तालीम का फ़रोग़। ये सफ़र ता क़यामत अधूरा रहेगा अगर हमने मुमकिन हद तक जो अपने माली वसाइल हैं वो इन कौम के करोड़ों बच्चों और बच्चियों के खिदमत में निछावर न किए कदमों में, ये सफ़र अधूरा रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड के तहत वज़ाइफ हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में चेक तकसीम किए।
पहले साल एंडोवमेंट फंड के 3 अरब रुपए से होनहार और मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ देने का आगाज कर दिया गया है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। लेकिन मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि टाइम निकाल के बग़ैर इतला दिए आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर, आके इधर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। मैं ऊपर गया तो उन्होंने मेरे गांव के पुराने जो डॉक्यूमेंट्स थे, बल्कि हमारे एक बड़े थे, उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब पैदा हुए थे बाजारा शहर है, वो हमारा पुराना गांव था, उसके साथ बड़ा जो शहर था झांगारा, उसके एक मर्द की दरख्वास्त थी 1858 की, जो कि कॉपी पड़ी थी कि जी यहाँ मकतब कायम किया जाए, और मुझे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि वो अभी हमने मंजूर किया है, तो इस पे हम काम करते हैं। खैर, आज का आने का मकसद जो किताब आर्काइव्स ने बनाई है उसको लॉन्च करना था। आई हैड द प्लेजर ऑफ गोइंग थ्रू दिस बुक। दीदी को मुझे भेजी थी तारिक साहब ने, और उसको मैंने गो थ्रू किया। मैं यही कहूँगा कि अ मस्ट हैव फॉर एवरी हाउस इन पाकिस्तान। इन फैक्ट बाहर भी हमारे जो दोस्त हैं, वी विल try and distribute this book so that you get to learn. Again, it is not research material, this is very easy read which anybody can go through very quickly. और ख़ास तौर पे हमारी नई जनरेशन जिनको हमारी हिस्ट्री का पता नहीं है, उसको पता चले कि ये, मुझे बड़ी हैरत हुई थी, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग कहते थे कि 1947 से पहले कराची था ही नहीं, 1947 के बाद पड़ा। ये भी मैंने सुना था। हाँ, कराची रिलेटिवली नया शहर है इस इलाके, इस रीजन का, फिर भी 300 साल के करीब पुराना शहर तो होगा ये रिलेटिवली, लेकिन ये सिविलाइजेशन हज़ारों साल पुरानी है। और जब तक, बड़ी अच्छी बात लगी थी, कहा था कि गाड़ी चलाते हुए अगर रियर व्यू मिरर, एक बार ज़रा ट्राई कर लें, रियर व्यू मिरर निकाल के गाड़ी चलाएं, आप ज़रूर कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। तो अगर आप अपनी हिस्ट्री को सामने नहीं रखेंगे, हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे, आप आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। तो मुबारकबाद तारिक हसन साहब को, आर्काइव्स डिपार्टमेंट को, फॉर दिस एक्सीलेंट एफर्ट। ये किताब जो उन्होंने छापी है, और जैसे मैंने कहा, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि ये हर घर में पहुँचे, ताकि ख़ास तौर पे नई जनरेशन हमारी, उनको पता चले हमारी हिस्ट्री कि कैसे ये ख़ित्ता आबाद होता रहा है, और किस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हमारी न्यू जनरेशन ने इसको और आगे ले जाना है। तारिक साहब ने जिक्र किया, जो बाकी नई किताब भी एक ला रहे हैं, बिल्कुल हम बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इधर आएँ, वो भी आर्काइव्स का विज़िट करें और देखें। आई एम श्योर जब वो आएंगे तो आप भुट्टो ख़ानदान की अगेन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड हिस्ट्री, ओडो साहब बैठे हैं, उनको पता होगा, वो नेबर्स रहे हैं उनके, जो रही है वो भी निकाल के दिखाएंगे, तो ही विल बी वेरी हैप्पी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को तारीख़ के हवाले से मालूमात हासिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। और प्रोग्राम में यहाँ आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत ने अपनी फ़हम फ़रासत से मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर एक बार फिर तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने के ख्वाहिशमंदों को मुँह की खानी पड़ी। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि माजी में इदारों को ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, हम मुल्क की तामीर व तरक्की का मिशन लेकर निकले हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान 24 घंटे आवाम तक मालूमात पहुँचाने के लिए काम कर रहा है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में इसकी नीलामी की बातें होती थीं, लेकिन हमने रेडियो पाकिस्तान की बहाली का मनसूबा शुरू किया है। रेडियो पाकिस्तान का बिजनेस प्लान तैयार किया है। उन्होंने बताया कि 12 स्टूडियोज़ की ट्रायल ट्रांसमिशन मुकम्मल हो चुकी है। इलाकाई ज़ुबानों में प्रोग्राम्स का आगाज़ के साथ साथ माहौलियात और स्पोर्ट्स के हवाले से भी ट्रांसमिशन का आगाज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, दीगर खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में नमाज मगरिब का वक्त हुआ है। अज़ान मगरिब सुनने की सादत हासिल करते हैं।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کا 2 روزہ اجلاس فیصل آباد میں ہوا۔ فیصل آباد پریس کلب میں ہونے والے اجلاس میں ملک بھر سے صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں کے وفود نے شرکت کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں حافظ محمد علی عابد۔ فیصل آباد یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے فیصل آباد پریس کلب میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز کی فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کا 2 روزہ اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر سے صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں نے شرکت کی۔ پی ایف یو جے ورکرز کے صدر پرویز شوکت کی صدارت میں ہونے والے اجلاس نے ریاست سے صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ انشاءاللہ جیسے ہم نے ماضی میں ورکر کے مسائل حل کرائے تھے، آئندہ بھی ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے آزادی صحافت کے لیے۔ اجلاس میں صحافیوں کی اداروں سے جبری چھانٹی، تنخواہوں کی عدم ادائیگی، ویج بورڈ پر عمل درآمد اور کانٹریکٹ ورکرز کے مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ جرنلسٹوں کی جو قدر و منزلت ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کا جو ایک اعتماد ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ اس کو کس طرح دوبارہ بحال کرنا ہے اور جرنلسٹوں کی بہتری کے لیے بھی پالیسی مرتب کی جا سکے۔ اجلاس میں ملک بھر کی یونین آف جرنلسٹ نے اپنی کارکردگی رپورٹس بھی پیش کی۔ اجلاس میں حکومت کی طرف سے صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس، ورکرز کے لیے کم سے کم تنخواہ 35,000 روپے کرنے اور اشتہارات کو تنخواہوں کی ادائیگی سے مشروط کرنے کو خوش آئند قرار دیا گیا۔ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس اس عزم کے ساتھ ختم ہوا کہ صحافیوں کے مسائل کے حل اور آزادی اظہار کو یقینی بنانے کے لیے جد و جہد جاری رکھی جائے گی۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نیوز شو ایٹ 7 کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق، نازیہ کمل اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔